an online webinar on business analysis. It is my pleasure to introduce Mr. Atul Grover, our valuable speaker of the day. Mr. Grover is an acclaimed business analyst trainer, a research scholar, and a preeminent expert in the field of IT. Mr. Grover's course area of skills are functional consulting, business analysis, requirement gathering, and user training, issue and risk management, and many others. Before speaking further, I have an announcement for the students. We will having a feedback form at the back of the session, so please remain and request them to fill it out. So coming back, sir, we wholeheartedly welcome you to this online webinar. Please grace this occasion with your words. Let's have a round of applause for the sir. Okay, so thank you so much, everyone. So let's start. Over to you, sir, please. Sure. Thank you, ma'am, Sushma, ma'am, and everyone. Welcome. I request everyone, please don't use the mobile phone here. I'm seeing some people are using the mobile phone. Please stop your WhatsApp and all the things. In the side, this side, I'm seeing some videos which logged by Sonia, ma'am. Please, guys, don't use the mobile phone. Thank you. So, as per the tradition, thank you so much for your welcome, a warm welcome. I'm sure that upcoming or maybe next 30-40 minutes, 50 minutes, मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, otherwise आप लोग अगर तो अभी से बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, ठीक है? We'll talk about something good, okay? Regarding this discussion, first of all, I would like to thanks to Sonia ma'am because she's chasing me very hard for this session. Fortunately, unfortunately, I did not get time to be talk to her and give my dates because due to some business requirement, I need to be travel to UK. So I'm in UK now. It's morning 6:30 for me, and for you guys 11 o'clock. So I'm sure you guys are not sleeping. ठीक है, नाश्ता वाश्ता सब कर लिया. फ्राइडे है, वैसे भी 1-1.5 घंटे का लेक्चर और होगा, फिर छुट्टी और फिर वीकेंड एंजॉय करेंगे. सो वी विल बी कंफर्टेबल इन हिंदी इंग्लिश बोथ. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि सर आप तो अंग्रेज बन गए जाके इतनी इंग्लिश बोल रहे हमें समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है. विल बी कंटिन्यू इन हिंदी इंग्लिश बोथ साइड्स. ठीक है, बट ओनली वन रिक्वायरमेंट आई हैव हियर. इफ यू हैव एनी डाउट और इफ आई आस्क एनी क्वेश्चन, यू हैव टू बी आंसर इट. हम आगे नहीं जाएंगे जब तक क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे. और बाकी जितने भी द स्टूडेंट्स हु लॉग इन एज ए इंडिविजुअल, आई जस्ट टेक अ नेम अगेन, रामा, आयीन, प्रियंका, अतुल कुमार, आयुष, अपर्णा, शर्ली एंड मनप्रीत. प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस गाइस. ठीक है, लो जैसे ही वीडियोस की बात करो लोग मीटिंग लेफ्ट कर जाते हैं. ठीक है, लेट्स डोंट वरी एंड विल स्टार्ट द सेशन नाउ एंड विल प्रेजेंट माय स्क्रीन. क्योंकि बिना प्रेजेंटेशन के तो कुछ होता नहीं है आज के टाइम, और ये मेरा फेवरेट हॉबी है ये आज के टाइम में. इन एनी ऑफ द मीटिंग वी गो, लेट मी प्रेजेंट माई स्क्रीन, तो बढ़िया रहता है. सिर्फ स्क्रीन शेयर करो, बैठ जाओ आराम से. ओके, जस्ट लेट मी नो वंस यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन गाइज. ओके, we have a topic called the business analyst. Okay, business analysis. Before we go in that area, okay, before we go that in area, let me do something like this so that I can see you guys as well. Okay, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, कोई बात नहीं, इसी में चलते हैं. ठीक है, before we go back in the actual topic, just see this image and tell me what you guys understand. इंग्लिश मत पढ़ना, सिर्फ डायग्राम्स देखो कि क्या समझ में आ रहा है. And I need the answer. If you want to answer, please unmute yourself and give me the answer. कि सर इसमें ये था और ये हो गया, या ये था और ये ऐसा हो गया. नहीं तो मैं तो इंडिविजुअली पिंग कर ही दूंगा किसी ना किसी को, फिर आंसर देना पड़ेगा. Anybody, what do you think? What this image is telling us? पता है, you know, when I was in my MCA now, so what we have do, if any guest lecture came in our class, or maybe because उस टाइम तो ऑनलाइन ऑफलाइन का मोड था, ऑनलाइन तो कुछ होता नहीं था वहां पे. So if any guest lecture came in our class ना,
सो वी पुट वन पर्सन अप फ्रंट एंड से बॉस सारे क्वेश्चन तू पूछना, बाद में मुझे चाय पिलाएंगे और 2 समोसे मेरी तरफ से. सो डेफिनेटली आई एम श्योर some tradition you guys are also following. I want to know that what you are understanding with this image. You can speak in Hindi, English, Punjabi as well. मुझे पंजाबी आती है, कोई दिक्कत नहीं. So if you see this image, it's saying कि the marketing requested like this, means they want a product should be available like this. Fine. Salesperson understand like this. See the difference. Then we will come to the topic. अभी टॉपिक तो हमने किया ही नहीं शुरू, और मुझे लगता है कि टॉपिक हमारा होगा भी अगर हम बोलेंगे नहीं. आई नीड ए 2-way कन्वर्सेशन. अगर हम नहीं आंसर देंगे तो नहीं होगा टॉपिक शुरू. ठीक है. हाउ guys like me, engineering guys, understand or design this way, and then how the actual manufacturing company design department manufacture like this, और जाके ये इंस्टॉल कैसे हुआ कस्टमर के साइड पे ऐसा, और कस्टमर को चाहिए क्या था ऐसा. मतलब क्या हम if we see this, what we can understand कि बॉस देयर इज समथिंग गैप इन अंडरस्टैंडिंग. हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली प्ले दैट चाइनीज विस्पर? वो मेरे कान में कोई बोलेगा, मैं किसी के कान में बोलूंगा, वो किसी के कान में बोलेगा, वो किसी के कान में बोलेगा. व्हाट्स दैट एक्चुअली? वो सब यही है. दैट इज द ओनली प्लेस, दैट इज द ओनली थिंग विच वी आर डिस्कसिंग नाउ. इफ से आई से समथिंग इन अभित शर्मा ईयर, हे माय नेम इज अतुल. He understands something else and he passed something else to Nikhil. Nikhil will understand something else, he will pass to Priyanka. Priyanka understands something else, he will pass to Kritika. Now what happening at the last? If I ask Kritika what he told, he says, it means she did not understand what I want to communicate to you guys. Okay, let's take another example, because the topic which we have is good, it's fine. Yes, Sushma, any question? Okay, fine. The topic we want to be discuss is actually good, but the thing is that we want to be understand from the practical experience. ठीक है. Now let's go back. Definitely in my house my mom is there. Okay. एंड मैं घर गया, मैंने मम्मी को बोला मेरे ना 5 दोस्त आ रहे हैं वीकेंड पे लंच पे. उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, गुड. व्हाट शी स्टार्टेड आस्किंग मी, अच्छा बताओ कितने लड़के कितनी लड़कियां आ रही हैं. जेन्युइन क्वेश्चन फैमिली का. ठीक है कोई बात नहीं. अच्छा क्या खाने में पसंद करोगे? सी द क्वेश्चन व्हाट शी इज आस्किंग. आप खाने में क्या पसंद करोगे? मैंने कहा ठीक है राजमा चावल बना लो. या अच्छा राजमा चावल रोटी हो जाएगी, रायता हो जाएगा, ठीक है फाइन. अच्छा मीठे में क्या खाओगे? मैंने कहा आइसक्रीम ले आते हैं, नहीं तो पेस्ट्री वेस्ट्री चलती है, केक वेक कुछ ऐसा ले आते हैं. अच्छा और स्टार्टर में क्या खाओगे? मैंने कहा पनीर पकौड़े बना लो, स्प्रिंग रोल बना लो, बहुत है. अच्छा ठीक है. और चाय वाय लोगे, ठंडा लोगे? मैंने कहा चाय भी चलेगी, ठंडा भी चलेगा. नाउ डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट शी वांट टू बी आस्क फ्रॉम यू? शी इज गेटिंग द रिक्वायरमेंट. क्यों? ताकि कल जब आप दोबारा कॉलेज में जाओ तो ये ना बोले अरे तेरी मम्मी ने तो कुछ खिलाया ही नहीं मुझे. यू हैज समथिंग इन योर माइंड कि भाई मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, दे शुड बी ट्रीटेड वेल, दे शुड हैव अ गुड लंच विद मी. स्टार्टर अच्छे होने चाहिए, ड्रिंक्स अच्छी होनी चाहिए, डेजर्ट्स अच्छे होने चाहिए, मेन कोर्स अच्छा होना चाहिए. एंड टू डू दैट पार्ट योर मदर इज आस्किंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम यू एंड यू आर गिविंग द रिक्वायरमेंट. नहीं मम्मी वो ना मीठा नहीं, वो ज्यादा मिर्ची नहीं खाते. ठीक है तो आप मिर्ची मत डालना ज्यादा. उनमें से 2 लोगों को ना मीठा बहुत पसंद है तो उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाना. अभी ठीक है यार बाल सही लग रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठते हैं. ठीक है तो ये चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहां पर. मतलब कि व्हाट माई मॉम इज डूइंग, शी इज टेकिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम मी एंड ऑन द डे ऑफ द गेस्ट शी सर्व द थिंग्स वन बाय वन. ऐसा नहीं कि पूरे डाइनिंग टेबल पे सब कुछ लगा दिया, स्टार्टर से लेकर डेजर्ट तक, नहीं.
वो आए, उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई। अच्छा बेटा कहाँ से हो, आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती है, घर में कौन कौन है, भाई अपने टिपिकल फैमिली वाले क्वेश्चंस जो रहते हैं। ठीक है, क्या पता लड़के को लड़की पसंद हो, ये भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, आए बैठे, फिर लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टर्स, थोड़ा सा पकौड़े वकौड़े या और कुछ ऐसे लेके आए, देन गो फॉर द कोल्ड ड्रिंक्स और द चाय, फिर मेन कोर्स हुआ, बातें हुई, उसके बाद डेजर्ट्स हुए, देन रिटर्न गिफ्ट्स एंड फाइनली बाय। नाउ इफ यू कम बैक टू दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर आपकी मम्मी को यह समझ में नहीं आता कि करना क्या है, तो ये सारा कुछ ऐसा बनता। कि अगर आपके पापा को या आपको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, आपको क्या एक्चुअली में अचीव करना है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते ही होते। आप बोलते मम्मी पकोड़े बना लो, मम्मी ने तो सैंडविच बना लिए। अब वो सैंडविच इतने हैवी हो गए कि लंच किसी ने किया ही नहीं। आपने कहा था मम्मी कोल्ड ड्रिंक लेना, मम्मी ने कॉफी बना दी, कॉफी पी के नींद आ गई। सो व्हाट दिस गैप, दिस इज द गैप ऑफ द रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस इज द टॉपिक विच यू आर गोइंग टू बी डिस्कस नाउ। बिजनेस एनालिसिस, जो एग्जाम्पल विच वी पिक अप, it's a very layman example so that you guys and we guys can understand. And I always say these kind of sessions are never only for you, it is equally important for me as well. ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ ज्ञान दे रहा हूं, नहीं, मैं तो आपसे ज्ञान बांट रहा हूं और ज्ञान ले भी रहा हूं आपसे। Now before we proceed further, anyone has any question till this point? कि सर फंडा तो क्लियर हो गया, लेकिन ये डाउट अभी भी माइंड में है। Anyone, any doubt, any question? अनम्यूट करिए, जो क्लासरूम में बैठे हैं, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो अनम्यूट करिए, आपके टीचर्स वहीं पर हैं, यू कैन आस्क। जो इंडिविजुअल कॉल पे हैं, दे कैन आस्क अनम्यूटिंग देयर सेल्फ नाउ। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो ठीक है, गुड। But I learned one thing from my experience, definitely in these sessions. It is not a loss for me. आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मेरा तो लॉस बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो वो जो रट के आया वो सुना के चला जाऊंगा। बट लॉस आपका है, क्योंकि जब 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद आप मार्केट में जाओगे, देन यू फाइंड द डिफिकल्टी। अरे सर ने कुछ तो बोला था, इसने वही क्वेश्चन पूछा यार मेरे से, उस टाइम मेरे को पता था मुझे पूछा, लेकिन मैंने पूछा नहीं। गोल्डन, साइलेंस इज गोल्डन, यस साइलेंस इज गोल्डन, लेकिन यहां पे नहीं है, यहां पे नुकसान है आपका। मेरे लिए तो अभी भी गोल्डन है, लेकिन आपके लिए नुकसान है। सो वेन एवर आई गो फॉर द इन पर्सन गेस्ट लेक्चर्स, मेरा लेक्चर जब शुरू होता है, मेरा जो नॉलेज शेयरिंग जब शुरू होती है, वो तकरीबन आधे घंटे के बाद होती है, जब सेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि उससे पहले इतने क्वेश्चन हो जाते हैं कि वो क्लियर करते 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 आधा टॉपिक खत्म हो जाता है हमारा। ठीक है, लेट्स गो टू द स्लाइड्स नाउ। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक टुडे। बहुत सारी स्लाइड्स हैं, अगर टाइम रहेगा तो हम सारी करेंगे, अदरवाइज आई पिक अप द इंपॉर्टेंट वन। द टॉपिक इज बिजनेस एनालिस्ट। आई एम अतुल ग्रोवर, एज अ वर्किंग as a business process consultant, Virtusa Consulting, currently in the UK, London. And along with this, I'm pursuing my PhD in the field of the business management, specifically in the latest technology. I cannot be reveal the topics or the areas now. From the Chitkara University, Punjab. Total experience 14 years as of now in the market. 1+ year in lecturership, trainer as a, or these sessions, I'm doing these sessions kind of thing more than 9 years now. On the personal front, I'm a ServiceNow trainer as well. Just for the passion part, I'm doing that training. So more than 60 to 70 students I trained, 200+ hours experience in that area. This is all about me. मुझे मतलब it's not, don't think अरे सर तो आप अपनी तारीफ करने लग गए, नहीं. Let's come to the topic now. Now the question come. This, if you see this slide, it is very important. Let me put for a few seconds. If you see these slides, it's saying that what exactly you're looking in IT. You know, if when I say I'm Atul Grover, you know what? I don't know coding. I cannot do the coding. I cannot write the code. If you ask me, sir, can you write a code for adding a 2 number? I cannot do. But I'm an MCA postgraduate, Masters in Computer Application.
नाउ द क्वेश्चन कम, फर्स्ट क्वेश्चन कम इन योर माइंड, सर अगर आपको ये नहीं आता तो आप कर क्या रहे हो मार्केट में बैठ के? आप कह रहे हो आपको 14 साल का एक्सपीरियंस है, देन व्हाट यू आर डूइंग? बिकॉज आई एम श्योर इन द क्लासरूम ऑन द इंडिविजुअल कॉल पीपल लाइक मी, सर कोडिंग तो मुझे भी नहीं आती, तो फिर मैं क्या करूंगा मार्केट में? इसका मतलब मेरे लिए कोई जॉब नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस वॉज द मिथ व्हेन आई डन माई एमसीए इन 2008, दैट वॉज द मिथ कि बॉस अगर आपको डेवलपर नहीं आते आपकी जॉब नहीं लगेगी किसी को आईटी कंपनी में। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। सो दिस स्लाइड विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट what are the domains, what are the roles available in the market. You can go for the developers, you can go for the testing, you can go for the functional consultant. This is my area, I am here now. You can go for the architect, you can become the SME, you can become the support engineer, you can go in the quality. But the base is that you should know the basics, fundamental of particular domain. Why, if you see, I can see Sonia ma'am is there, Dr. Rama Bansal is there. They are in this field for ages now. I can see Sushma ma'am is there. By seeing them on the screen, I'm sure that they are more than 20-30 years in this industry now. And they started their journey maybe a normal teacher or a lecturer, and now with their efforts, with their education skills, with their capabilities, with their capacity, they are working as a maybe dean, HODs, or maybe in some other bigger positions. It means if you want to achieve any one of these areas, you should have a basic fundamental knowledge of that particular domain. Now if I go and talk to Sonia ma'am, I want to do this course. Atul, do this course from this particular location or this particular institute, because she know better than me in that area. But she approached me, Atul, I have a student from the BCom, BA, BBA, MCA. Can you give a session on the topic which they can understand? I said, okay. Instead of going in a GPS or C++ or Oracle, no. I think let me put some easy topic which is useful for them day in, day out. Okay. Let's put a break for 30 seconds and be comfortable, guys. Don't think कि अगर मैंने ऐसा बोला तो हमारी क्लास में सर घूम रहे हैं, हमें पता नहीं बाद में क्या कहेंगे. I request Dr. Rama Bansal, Dr. Madam Sushma or Sonia ma'am, please don't say anything to the students if they ask any other or which they think as a nonsense question. Are you guys sleeping in the class now? जो हाँ ये दैट इज द गुड ट्रिक. मेरे से तो पूछा नहीं क्योंकि मैं तो आगे बैठा हूं, पीछे वाले से पूछा होगा, और जो मास्क लगा के बैठे उनके तो मजे हैं बिल्कुल. दैट्स फाइन, गुड. सो माय क्वेश्चन दैट आर यू गाइस फीलिंग स्लीपी, कि सर बोर हो रहा है, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइए. अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को चाय बनानी आती है? रेज योर हैंड्स. ओके ओके. Oh my goodness, yes. My wife follow one I not say she's a dietitian, it's not a right word, but she's a good in this area of the industry, like good foods and healthy foods. Rituja name is that lady name. She always says that if you want your future better, teach your children, teach your kids that how to cook. क्योंकि डब्बे बंद खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, वो सिर्फ टाइम पास होगा. लेकिन अगर आपको खुद बनाना आता है, आपका पेट भी भरेगा और आपको नॉलेज भी मिलेगी. अब मुझे ये बताइए, हाउ टू मेक ए कप ऑफ टी. लेट्स से दैट डॉक्टर रामा बंसल इनवाइटेड मी फॉर अ टी एंड दे आस्क वन ऑफ द स्टूडेंट, हे यू आर गुड इन द टी मेकिंग, लेट्स हैव अ टी टुगेदर. तो जो दो लोग आगे बैठे बिल्कुल मेरे यहां पर, अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं यहां पर, यस यू, हाँ बताइए. नहीं आपके साथ वाला, हाँ आपके साथ वाला, बताइए चाय बनाने का क्या प्रोसेस है? पहले एक गिलास पानी लेते हैं. अच्छा. पहले रिक्वायरमेंट टाइप करके देंगे कितने बंदों के लिए चाय बनानी है. अच्छा. सब लेंगे, फिर
डिपेंड करता है किसी को शुगर तो नहीं, उस हिसाब से चीनी डाली जाएगी, अदरक डाली जाएगी, चायपत्ती डाली जाएगी। Okay. उबाल के थोड़ा जाएगा, दूध डाला जाएगा, Okay. इलायची, सौंफ, नमक और मसाला साइड में डालिए और उसके बाद फिर उबाल के फिर डाल के दे देंगे। अच्छा ठीक है, गुड, थैंक यू। यू कैन म्यूट योरसेल्फ नाउ, थैंक यू। अब आप अगर एवरीबडी हु इज बी लिसनिंग, लेट्स सी व्हाट गैप वाज देयर। इन्होंने, आई एम नॉट श्योर दैट व्हाट्स योर नेम, बट लेट्स से इट्स मिस्टर गुड इज देयर, हिज नेम इज मिस्टर गुड नाउ, ओके। ही टेल द कंप्लीट प्रोसेस, बट कुछ चीजें अभी भी मिस हुई। जैसे इन्होंने पूछा कि सर कितने बंदों के लिए चाय बनेगी, हम चाय लेंगे, हम चाय पत्ती लेंगे, चीनी लेंगे, दूध लेंगे, ऑल दिस थिंग्स, बट ये नहीं बताया कि सर गैस कितने नंबर पे चलानी है, सिम पे करना है या तेज पे करना है या मीडियम पे करना है। इन्होंने ये नहीं बताया कि मैं बनाऊंगा किस में, हाथ में बनाऊंगा या फ्राई पैन में बनाऊंगा, ठीक है। इन्होंने बोला सर चाय बन जाएगी, इसको डालेंगे और ले लेंगे, लेकिन डालोगे कैसे, छन्नी से डालोगे या हाथ से ऐसे करके डालोगे जैसे स्टोर्स पे मिलती है, ऐसे मिलती है, ठीक है। सो इट मीन्स he know that what need to be achieved, but he missed out few basic requirements। कि सर पहले जो डायबिटिक्स पेशेंट्स हैं उनके लिए बनाए हैं या पहले सबके लिए बना दे, उसमें से अलग से निकालेंगे। यहाँ सर दूध वाली चाय लेंगे, बिना दूध की चाय लेंगे, क्योंकि द प्लेस आई एम स्टेइंग हियर द पीपल प्रेफर द विदाउट मिल्क, दे पुट जस्ट दिस मच मिल्क विच वी डोंट लाइक। ओके, सो नाउ द कंसेप्ट कम हियर इज कॉल्ड द बिजनेस एनालिसिस। आई एम नॉट सेइंग इट इज अ बिजनेस एनालिस्ट, नो, यहां फर्क है, यहां एस है, टी नहीं है। सो इफ आई से लेट्स गो बैक टू द सेम एग्जांपल। मुझे पता प्रेजेंटेशंस में ज्यादा मजा नहीं है, और डोंट आस्क दिस प्रेजेंटेशंस। ये प्रेजेंटेशन जो रात को 11 बजे 12 बजे बैठ के बनाई और रेडी हो गई, 5-7 स्लाइड्स डाली और सब कॉपी पेस्ट नेट से मिल जाएंगे आराम से, गारंटी से कहता हूं, ठीक है। लेट्स से जब हमने व्हेन वी टेक एग्जांपल ऑफ गेस्ट इज कमिंग एट माय होम and my mom start asking the thing, ठीक है, what she is doing a set of task before the guest actually arrived, right? It means if I come here for the definition is a set of task, knowledge and techniques required to identify the business need। अब यही काम अगर मैं आपको बोलता हूं मिस्टर गुड कि मेरे घर पे 5 गेस्ट आ रहे हैं, आप बोलोगे हाँ सिर्फ बाहर से मंगा लेंगे खाना, काम खत्म हो गया। लेकिन आपकी मम्मी को पता है कि बाहर से अगर खाना मंगाएंगे दैट विल नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट, लेट्स मेक इट एट होम। और कहता है ना हमारे हिंदू ट्रेडिशन में तो कहते हैं कि घर पे जब खाना बनता है उसमें हमेशा बरकत ही होती है, उसमें अगर 2 लोग एक्स्ट्रा भी आएंगे तो भी खाना बचेगा, कम नहीं पड़ेगा कभी खाना, राइट। तो वो कंसेप्ट उन्होंने वहां पे यूज किया। सो व्हाट शी डिड, शी हैज अ सेट ऑफ टास्क, शी आस्क्ड द रिक्वायरमेंट वन बाय वन। अच्छा कितने लोग हैं, व्हाट दे वांट, स्टार्टर है, लंच पे आएंगे, डिनर पे आएंगे, चाय पार्टी में कैसा रहेगा, स्नैक्स क्या रहेंगे, बिकॉज शी हैज अ नॉलेज एंड शी हैज अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई द नीड। अच्छा ये बताओ यार, तुम्हारे जो दोस्त आएंगे उनमें से कोई स्मोक वोक तो नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं। अच्छा ये बताओ कोई नॉनवेज तो नहीं खाता, क्योंकि हमारे पे नॉनवेज नहीं बनेगा। सो शी हैज अ टेक्निक। अब आप किसी से डायरेक्टली नहीं पूछते यार तुम चिकन खाते हो क्या, विल से अच्छा यार डू यू लाइक सम नॉनवेज इन द लंच, अरे नहीं यार मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूं। बिना क्वेश्चन किए, डायरेक्ट क्वेश्चन किए, आपको आपका रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई कि जो भी लोग आ रहे हैं सबके सब वेजिटेरियन हैं। आई गिव यू अ गुड एग्जांपल हियर एंड these are the things which clarify the topics here। जब हम छोटे होते हैं ना, मान लीजिए मैं स्कूल गया या आप स्कूल गए, आपकी लड़ाई हो गई आपके किसी दोस्त के साथ, ठीक है। अंडरस्टैंड द एग्जांपल, लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग हियर, विल टेक अ फुल स्क्रीन नाउ। हाँ अब ठीक लग रहा है, ठीक है। एंड आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड, ठीक है। मैं स्कूल गया, 5-6 साल का अंदाजा लेते हैं। मैं स्कूल गया, मम्मी ने लंच वंच दिया बना के, मेरा टेस्ट था, टेस्ट अच्छा हो गया, रिसर्च हुआ, मैंने लंच किया और रिसर्च उसके बाद मैं घर आ गया। मैंने केम बैक होम, आई वॉज नॉट इन द गुड मूड, बड़ा गुस्सा आ रहा था मुझे। मम्मी, मैं घर आया, मम्मी अपनी इंडियन मम्मी तो है, प्यारी होती हैं। अच्छा मेरे बेटा आ गया घर, ओ कैसा रहा दिन, मुझे बात नहीं करनी आपसे। सी द आंसर्स एंड सी द क्वेश्चन व्हाट शी इज आस्किंग। अगर आपको ये चीज फंडामेंटल समझ में आ गया तो समझो ये टॉपिक यहीं पे क्लोज भी हो जाएगा हमारा।
ठीक है, नहीं मम्मी मुझे बात नहीं करनी। ना मम्मी तो मम्मी होती है। अच्छा बता क्या हो गया? मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है। अच्छा बता आज पराठा कैसा था? हाँ अच्छा था पराठा। नाउ सी द क्वेश्चन एंड द आंसर इज चेंजिंग। मुझे बात नहीं करने से ही इज ट्राइंग, आई एम ट्राइंग टू आंसर दिस। हाँ अच्छा था। अच्छा अरे हाँ तो तुम्हारा मैथ का टेस्ट था कैसा हुआ? अरे मम्मी मेरे तो 10 में से 9 नंबर आए, 1 नंबर कट गया। अच्छा ठीक है, मतलब कि नाउ फ्रॉम द नेगेटिव पार्ट शी इज गोइंग इन द पॉजिटिव एरिया। अच्छा फिर लंच कब किया? लंच का रिसर्च में करूंगा, कौन सा क्लास में बैठ के करूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर आज क्या खेले तुम लोग? हम खेल रहे थे पकड़ पकड़। और फिर पता है क्या हुआ? मोनू ने मुझे बुरी तरह धक्का मारा और मैं गिर गया। नाउ शी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कि ये गुस्से में क्यों है। अंडरस्टैंड दिस इज द थिंग शी इज डूइंग। शी हैज अ सेट ऑफ टास्क। उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, पूछ रही है। शी इज आस्किंग टू यू कि भाई बता बुरा क्या हो, क्यों नहीं बात करनी। यू डिड नॉट आंसर। देन शी पुट द नॉलेज एंड सब टेक्निक्स, एंड व्हेन शी यूज द टेक्निक शी इज एबल टू आइडेंटिफाई कि अच्छा इसकी आज मोनू से लड़ाई हो गई इसलिए इसका आज मूड खराब है। दिस इज द थिंग कॉल्ड द बिजनेस एनालिसिस। शी इज एनालाइजिंग कि क्यों मेरा बेटा आज गुस्से में है, एंड देन शी इज एबल टू आइडेंटिफाई। अच्छा लड़ाई हो गई, नाउ शी फाइंड द प्रॉब्लम कि अच्छा भाई लड़ाई हो गई, लेकिन अभी प्रॉब्लम का कॉज नहीं मिला। लड़ाई क्यों हो गई? अरे आपने वो सैंडविच दिया था ना, जो पराठा दिया था वो पूरा खा गया, मुझे आधा मिला, आधा भी नहीं मिला मुझे, और मुझे भूख लग रही थी और मैंने उसको धक्का दिया, मुझे बहुत तेज धक्का दिया, मैं गिर गया। नाउ शी अंडरस्टैंड द गैप कि इफ आई एम मेकिंग ए पराठा आई हैव टू मेक 2 पराठास फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, एक इसका और एक मोनू का, ताकि उसकी लड़ाई ना हो। सो शी आइडेंटिफाई द गैप, शी आइडेंटिफाई द नीड, शी अंडरस्टैंड द नीड with the set of tasks, knowledge, and at last by using the techniques she done her job. This concept is called the business analysis. Any doubt, any question till this point? Anyone? ये जो पीछे वाले हैं उनको भी पूछते हैं। हाँ आप मिस्टर गुड पीछे मुंह करके देखना कौन है। हाँ उनको बोलो किसी कोई क्वेश्चन है क्या? जोर से जरा एक बार बोलो क्लास में। नहीं है कोई क्वेश्चन? अच्छा ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं मूवी का? अरे होता बहुत सारे लोगों को होता है कि मुझे पहले दिन पहला शो ही देखना, नहीं तो पिक्चर देखनी नहीं। सलमान की पिक्चर हो जाए या अमिताभ की पिक्चर हो जाए, कोई तो फैन होगा, या कोई वेब सीरीज आती है, नहीं मुझे तो सॉरी मूवीज पे डिपेंड करते हैं कौन सी मूवी। चलो ठीक है, ईद पे मूवी आ रही है सलमान खान की बढ़िया सी, अब बताइए दिवाली पे मूवी आ रही है कोई बढ़िया सी, अक्षय कुमार के भी शायद राम सेतु आनी आ गई, मुझे आइडिया नहीं है। सो वो है ठीक है। अगर आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं देन आई कैन से यस मुझे दिस इज माई हॉबी। बट आई एम नोटिसिंग वन थिंग विच पीपल आर सिटिंग हियर कि फर्स्ट रो में तो 2 बच्चे बैठे हैं, बाकी सब पीछे पीछे बैठे हैं। भाई जो पीछे बैठे थोड़ा सा आगे आ जाओ, पैसे आपने उतने दिए जितना इन्होंने दिए हैं फीस के। सो कम फॉरवर्ड गाइज, ये सेशन आपके लिए, मेरे लिए नहीं है ठीक है। या मुझे लग रहा है कि मिस्टर गुड से सबकी डील हो गई है, भाई सारे क्वेश्चन दे दे और बाद में चाय समोसे पार्टी हमारी तरफ से ले ली थोड़ी थोड़ी करके। 4 दिन का तेरा इंतजाम पक्का ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। I'll give you one story as well in the meantime. अगर नहीं बताया ना तो मुझे पूछ लेना कि आप स्टोरी सुनाने वाले थे ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट है बिजनेस एनालिसिस का। नाउ इफ आई कम टू द पर्सन, जो पर्सन ये काम करता है कॉल्ड द बिजनेस एनालिस्ट। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अतुल ग्रोवर, our mothers are the richest experience holder in the field of the business analyst. शादी होने से लेके बेबी होने तक और सास बनने तक और दादी बनने तक, नानी बनने तक, she know everything. उनके पास टेक्निक्स हैं, उनके पास नॉलेज है
शी नो कि अगर मेरे हस्बैंड आज मुझे कहीं बाहर लेके जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड के दोस्त घर पर आए तो मुझे उनको कैसे ट्रीट करना है, मेरे इन लॉज अगर घर आ रहे हैं तो मुझे उनको कैसे ट्रीट करना है, मेरे बच्चे के फ्रेंड्स आ रहे हैं तो मुझे कैसे ट्रीट करना है. आई एम गोइंग टू बी मदर नाउ, आई नीड टू बी ट्रीट माई सेल्फ, माई फैमिली, माई हस्बैंड एंड माई बेबी. सो शी इज द वन ऑफ द रिचेस्ट एक्सपीरियंस होल्डर इन द फील्ड ऑफ द बिजनेस एनालिस्ट. उनको रिक्वायरमेंट्स पता है, वो रिक्वायरमेंट गैदर करने के ट्रिक्स जानती हैं. ठीक है, जैसे इन द बिगिनिंग आई गेस कृतिका ने कहा कि सबको फीडबैक फॉर्म मिलेगा एंड यू हैव टू फिल इट, राइट, बिकॉज दे वांट टू गैदर द रिक्वायरमेंट कि अगली बार इनको बुलाया जाए, इनको ब्लॉक कर दिया जाए अपने कॉलेज में कि सर अगर आप बाहर भी दिख गए ना तो आपको दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी यहां पर. एंड यू विल नॉट बिलीव गाइस, माय प्लान इज टू कम इन पर्सन इन द कॉलेज एक्चुअली, क्योंकि कोविड थोड़ा सा रिलैक्स सिचुएशन हुआ रिलैक्स, तो मेरा प्लान था, बट ड्यू टू दिस ट्रैवल प्लान इट डिड नॉट वर्क आउट. अदरवाइज मैंने मैम को बोला मैडम अगला सेशन और 10 जो सेशन होगा आई विल कम इन पर्सन, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र में ही रहता हूं तो वहां से आना इज नॉट अ टफ टास्क. या मैं भी पूना में हूं तो पूना से दिल्ली जब भी आऊंगा आई विल टेक अ सेशन फॉर द गाइज. ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन कम कि बॉस जो बिजनेस एनालिस्ट है वो करता क्या है. आपकी मम्मी ने आपका जो प्रॉब्लम था गुस्से वाला उसको आइडेंटिफाई किया. शी आइडेंटिफाई द नीड कि बॉस मेरे बच्चा आज गुस्सा क्यों है, इसको क्या प्रॉब्लम हो गई आज. शी डन द एलिकेशन एंड द कोलैबोरेशन. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टर्म. Now the question, the thing I tell you, the word is allocation. Maybe if you read or if you hear this word on the Google, they pronounce something different. So I hear this word differently with the different people. Okay, मतलब word same है लेकिन pronunciation का तरीका अलग अलग है. What this mean by allocation, the collaboration? आपकी मम्मी ने पूछा ये बताओ अच्छा आज क्या हुआ, खाना खाया था, टेस्ट कैसा हुआ. शी इज प्रॉबिंग यू, शी इज प्रोवोकिंग यू टू बी आंसर, ताकि आप उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे सको और वो आपको सॉल्यूशन दे सके. सो दिस इज द वन ऑफ द कोर एरिया, वन ऑफ द कोर फील्ड, इट इज द वन ऑफ द कोर एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट कि मुझे रिक्वायरमेंट गैदर करना है अपने कस्टमर से. मैंने सोनिया मैम से पूछा, मैंने कहा मैम ये बताइए आपके यहाँ पे कौन से स्टूडेंट्स हैं. उन्होंने बोला सर बीबीए, बीकॉम, बीएससी और बीसी और एमसी के होंगे. मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि किस ईयर में है, फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड के, थर्ड के, क्योंकि मुझे पता अगर फर्स्ट ईयर के होंगे तो उनको उतना हैवी टॉपिक नहीं चलेगा, लेकिन फाइनल के होंगे तो उनको हैवी टॉपिक भी चलेगा क्योंकि दे आर मैच्योर इन द सिस्टम नाउ. सो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड द रिक्वायरमेंट गैदरिंग. मैडम अच्छा ये बताओ और आपके कलीग्स हैं, जो आपके एचओडीज हैं, जो आपके लेक्चरर्स हैं, वो किस एक्सपीरियंस में हैं, किस फील्ड में वो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हो सकता है उनका एक्सपर्ट एरिया मुझे हेल्प करे प्रेजेंटेशन करने में. देन शी सेज सर ये इस इसमें एरियाज में है, आप इनसे मतलब अगर चाहो तो आप इनसे बात करना चाहो तो आप कर सकते हो, मैं आपको करवा दूंगी बात. सो व्हाट आई डिड द दिस थिंग गैदरिंग विद द कोलैबोरेशन. ठीक है. Now the third point which I do as a business analyst, requirement communication. सोनिया मैम ने पहले अपने डिपार्टमेंट में बात की कि हमें ना एक सेशन करवाना है. आई नो एंड आई एम नॉट श्योर दैट हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट हाउ आई एंड सोनिया मैम हैज बीन कनेक्टेड. शी इज माई लेक्चरर इन माई MCA. ओके, सो शी अभी क्या है कि जब मैं MCA में था शी कॉल मी बाय माई नेम अतुल. But now I'm in experience, she called me as sir. But I still feel little bad that why you're calling me sir. You still my teacher, you have a right to call me as Atul directly. इंडस्ट्री में है एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि हम आपसे बड़े हो गए, आपसे हमेशा आज भी हम आपसे छोटे ही हैं. So you can call me. So she's a lecturer in Yamunanagar College and I guess we studied something simulation or some other subjects she taught me. Okay. So we started the requirement कम्युनिकेशन कैसे. मैडम ने मुझे बोला तो देखो हमारे यहाँ पे ना ये स्टूडेंट्स हैं, इस बैकग्राउंड्स के हैं एंड आई वांट समथिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक. मुझे टेक्निकल नहीं चाहिए, तुमको टूल लेके आओ, मुझे वो नहीं चाहिए अभी. तुमको टेक्निकल लेके आओ, नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए. कुछ ऐसा टॉपिक लेके आओ जो
इजी हो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनको डे टू डे में काम आए. Then we discuss a topic called the medium small and medium small enterprises, जो कि आजकल आई गेस हरियाणा गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हर कॉलेज में सेशन कराने के लिए. आई सेड मैम कि मैंने लेटेस्ट ये डिलीवर किया था, इफ यू वांट आई कैन गाइड टू द स्टूडेंट्स. उन्होंने बोला नहीं अतुल एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, आई डेफिनेटली कम बैक ऑन दिस, लेकिन अभी कुछ ऐसा टॉपिक हो विच दे कैन रिलेट देयर वर्क. मैं कहा ठीक है, लेट्स गो फॉर द बिजनेस एनालिस्ट कोर्स. देन ये सेशन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा क्या है. एंड शी टोल्ड मी क्लियरली, अतुल ज्यादा स्लाइड्स मत बनाना, क्योंकि व्हेन आई वाज इन माय एमसी एंड आई वाज डूइंग दिस सेमिनार्स एंड ऑल, मैं 40 स्लाइड्स बनाता था, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता स्लाइड्स बनाने में, अलग अलग एनिमेशंस करके, ट्रांजिशंस करके, कहीं कहीं से इमेजेस ढूंढ के. एंड यू विल सरप्राइज दैट माय कलीग्स, माय टीम क्लासमेट्स गिव मी चॉकलेट फॉर मेकिंग देयर प्रेजेंटेशंस एज वेल. और मैं बड़ी वाली चॉकलेट, इतनी बड़ी चॉकलेट चार्ज करता था उनसे. बॉस बन जाएगी, जिस दिन सेमिनार होगा उस दिन पहले मुझे चॉकलेट देना, मैं आपको पेन ड्राइव में प्रेजेंटेशंस दे दूंगा. ठीक है, सो लेट्स कम बैक हियर. तो फिर मैंने और सोनी मैम ने मिलकर रिक्वायरमेंट को कम्युनिकेट किया. ठीक है भाई, ये हमारा रिक्वायरमेंट आपको सेशन करना है. एंड फाइनली रिक्वायरमेंट मॉडलिंग. मैंने डिजाइन किया कि भाई मैं किस टॉपिक से शुरू करूं. हो सकता था मैं आपको अगर मैं बोलूं देखो मैं ये इतने बड़े लेके आया हूं, आप बोलोगे अरे क्या सर, इंग्लिश तो हम पढ़ ही लेंगे, कुछ और बताओ. देन आई से लेट्स डू द रिक्वायरमेंट मॉडलिंग इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर्स. नाउ मैंने उसको एक स्टेप बाय स्टेप करना शुरू किया. वाई आई स्टार्टेड माई टॉपिक विद दिस इमेज, ताकि आपको फर्स्ट मिनट से थॉट पड़ जाए दिमाग में कि अरे इसमें कुछ तो है जो मुझे सोचना पड़ेगा, जो मुझे समझना पड़ेगा. इसलिए मैंने स्टार्टिंग इमेज से किया कि आप देखो, सोचो, समझो इसमें क्या है. पेड़ है, रस्सी है, डंडे हैं, झूला बनाना. लेकिन झूला बनाना क्या था और झूला बन क्या गया, ये ही टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं. लेट्स कम बैक हियर. ठीक है, और फिर हमने मॉडलिंग किया और अब हम उस रिक्वायरमेंट को मैनेज कर रहे हैं. द वे मैम वांट, द थिंग्स मैडम वांट, आई एम डिलीवरिंग दैट. ठीक है, तो यहां पर हुआ मेरा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट. सो एट दिस प्लेस आई एम अ प्रेजेंटर एंड आई एम अ बिजनेस एनालिस्ट एज वेल. क्योंकि मैंने पहले मैडम से नीड आइडेंटिफाई किया, फिर मैंने इनके साथ बातचीत शुरू की, इनको मैडम को पॉक किया, प्रोवोक किया, इंफॉर्मेशन लिया कि मुझे बताओ आपके यहाँ पे कितने साल के बच्चे हैं, क्या एजुकेशन है, क्या बैकग्राउंड है, हिंदी प्रेफरेंस है, इंग्लिश प्रेफरेंस है. ये सब मैंने यहां पर किया, इनसे बात की. हो सकता है कि सोने मैम ने ये सब चीजें करने के लिए अपने डीन या अपने एचओडी से भी बात की हो, लेकिन मेरे लिए सोने मैम वॉज अ फ्रंट फेस. सो मेरा जो डिस्कशन हुआ यहां पर हुआ. फिर उन्होंने मुझे कम्युनिकेट किया, मैंने उनको कम्युनिकेट किया, और फिर मैंने प्रेजेंटेशंस बनाई. और आज हम इसको मॉडल कर रहे हैं, सॉरी इसको प्रेजेंट करके इसको प्रोसीड करें कि जो मेरा नीड था वो मेरा पूरा हुआ कि नहीं हुआ. एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? मेरे पास टाइम है, मेरे पास अभी भी 1 घंटा और है. मेरा ऑफिस 8:30 बजे शुरू होगा, मुझे आज ऑफिस भी नहीं जाना, घर से ही करना है, तो मैं 1 घंटा और बोल सकता हूं. तो चिंता मत करो, आपको घर जाना है तो आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, नहीं तो मुझे तो कोई चिंता है ही नहीं. आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट पार्ट. और आई एम श्योर कि सोनिया मैम भी मुझे नहीं बोलेंगे तुम सर 1 घंटा हो गया बस बंद करो. ओके, नो क्वेश्चन, फाइन, लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ. इसको छोड़ दें क्योंकि मुझे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है. यस, ये वाला. यहां पे आते हैं. क्वेश्चन ये है कि अगर मैं, इफ आई एम अ बिजनेस एनालिस्ट, ओके, आई फ्रॉम द स्टार्टिंग आई एम सेइंग कि मेरा काम तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का है. मम्मी क्या कर रही थी, मेरे से पूछ रही थी, आपके दोस्त आ रहे हैं, वो रिक्वायरमेंट ले रही थी. सो द क्वेश्चन कम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट हियर? Requirement mean, if I go as per some definitions, it is a condition or a capability needed by a stakeholder to solve a problem or achieve an objective. As per the government or maybe as per the UGC, it is mandatory for the colleges to have few guest lectures in their college for the students.
मतलब जब मैं 2008 की बात कर रहा हूं, तब हमारे कॉलेज में IIT से लोग आते थे गेस्ट लेक्चर देने के लिए। ये GPS का सिस्टम है, ये वाला सिस्टम है, और हम सोचते पता नहीं क्या होगा। और यू नो वन थिंग, मे बी आई कैन रिकमेंड हियर। अभी तो आप लोग सब घर पे हो या कुछ लोग कॉलेज में हो, सुन लिया, नहीं सुना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट वॉज असाइनमेंट टू अस कि जो भी गेस्ट लेक्चर होगा उसके बाद हर स्टूडेंट को 2 दिन के अंदर उस गेस्ट लेक्चर के ऊपर असाइनमेंट सबमिट करनी पड़ेगी। ये अलग से टास्क होता था हमारे लिए। तो आपको झक मार के सुनना ही पड़ेगा। नहीं सुनोगे तो वो चीटिंग तो होती थी, नहीं सुनोगे तो, लेकिन हम अपने बुलेट पॉइंट लेते थे, ठीक है बाकी नेट से उठा लेंगे, बुलेट पॉइंट ले लो। बट इट इज गुड। मे बी आई कैन आस्क सोनिया मैम कि आप ये सर्कुलेट करिए अपने क्लास में आज कि बच्चों को जो भी आज कोर्स है या जो भी हम कंटेंट डिस्कस करें, इस पे असाइनमेंट बना के देनी है और हैंड रिटन होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अ कंप्यूटराइज वन, इट शुड बी हैंड रिटन। ठीक है, चलिए बैक टू कम दिस साइड। नाउ द थिंग इज दैट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट वी आर सेइंग। सो दिस इज अ नीड फॉर अ कॉलेज टू गेट अ गुड रेटिंग फ्रॉम द UGC कि भाई हमारे कॉलेज में कोई इंडस्ट्री का पर्सन आया और उसने हमारे कॉलेज के बच्चों को सेशन दिया, राइट। सो इफ आई कम हियर, इट इज अ कंडीशन और अ कैपेबिलिटी नीडेड बाय अ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? आप लोग। मतलब अगर मैं सोनिया मैम की बात करूं तो सोनिया मैम के लिए उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, UGC एंड यू गाइज आर द स्टेक होल्डर। क्योंकि कल जब आप ये कॉलेज से पास आउट होके जाएंगे, देन यू आर एबल टू से यस, अरे हमारे कॉलेज में तो बड़ी बड़ी कंपनी के लोग आते हैं, पता लंदन से भी किसी ने लेक्चर दिया था और रहते वो पुणे में थे पहले, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर स्टेक होल्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम क्या है? आई एम गिविंग द फैक्ट, आई एम नॉट डिस्करेजिंग, नो ऑफेंस टू एनी ऑफ द लेक्चरर, बट लेक्चर सेज कि जब मेरी सोनिया मैम से शुरू में बात होती थी तो मैम कहते थे अतुल आप इंडस्ट्री में हैं, आपको पता है कि मार्केट में क्या चलता है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सा टूल है, कौन सा स्किल सेट है, कौन सा फ्रेमवर्क चलता है। बट वी गाइज आर नॉट दैट मच अवेयर। नॉलेज है, उनको पता है कि क्या है, बट उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। तो ये उनकी नीड बन गई, ये उनका ऑब्जेक्टिव है कि हर साल हमें कम से कम 5 गेस्ट लेक्चर करने हैं अलग अलग IT के लोगों से। तो उनको ये अचीव करना है क्योंकि उनको रिस्पॉन्ड करना है स्टेक होल्डर्स को, और ये उनकी रिक्वायरमेंट बन गई है। और टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट दे अप्रोच लाइक मी और अदर गुड एंड रेप्यूटेड पर्सन इन द कंपनीज ऑन द रेप्यूटेड पोजीशंस एज वेल कि सर हमारे यहां पर स्टूडेंट्स हैं, आप गेस्ट लेक्चर लेंगे? डेफिनेटली वी कैन टेक। एंड इट इज माय 25th गेस्ट लेक्चर आई एम डिलीवरिंग नाउ। I'll not say it's a guest lecture, it's a knowledge sharing session for me. क्योंकि गेस्ट लेक्चर में क्या होता है, आप मनी माइंडेड हो जाते हो। अरे मैं गेस्ट में बन के जाऊंगा, मुझे अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कुछ पैसे मिलने चाहिए। बट इट्स अ नॉलेज शेयरिंग सेशन फॉर मी कि ठीक है ज्ञान है, दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी का भला हो गया, किसी को कुछ मिल गया और मुझे आपसे कुछ मिल गया, आई विल बी मोर हैप्पी, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट का डेफिनेशन है। बट अगर मैं BA के टर्म में बात करूं तो ये 6 वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए हमेशा। चेंज, नीड, सॉल्यूशन, स्टेक होल्डर, कंटेक्स्ट एंड अ वैल्यू। ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको डेफिनेशन दिख रही है, मैंने लिखी नहीं है। देयर इज अ बुक विच इज फेमस एज ए BA BOK, BABOK। ये उसके स्टैंडर्ड डेफिनेशंस है। जो एक्सपर्ट्स लोग हैं जिन्होंने बुक को ड्राफ्ट किया, लिखा, ये उनकी डेफिनेशंस है। और इसमें वर्ड्स आप चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका पूरा जो आइडिया चेंज हो जाएगा। लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पिक अप द नीड। नीड क्या है? सर कुछ चाहिए, वो नीड होती है, राइट? इफ आई कम हियर, नीड इज अ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी टू बी एड्रेस। कोविड जो आया उसने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि भाई सारा कुछ घर पे बैठ के हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई भी,
ऑफिस का काम भी, ग्रोसरी भी, सब कुछ घर पे बैठ के हो सकता है। कुछ लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी माना और नए नए तरह के बिजनेस शुरू कर दिए। होम डिलीवरी शुरू कर दी कि भाई मैं घर पे खाली बैठा हूं, किसी को कुछ मंगाना है मुझे फोन करो, जाके दुकान से मैं लेके आऊंगा और आपके घर पे डिलीवर करूंगा। सो वो क्या था, ये नीड थी, इट इज अ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी टू बी एड्रेस। पहले आपको पता है, जब बहुत पुराना टाइम है, तब अगर किसी को, जैसे सुदामा की बात करें, सुदामा को भगवान कृष्ण से मिलने जाना था तो वो पैदल गए थे। होती थी बैलगाड़ी टाइप से होती थी, लेकिन इतनी नहीं होती थी, सिर्फ अमीर लोगों के पास थी उस टाइम वो। तो सुदामा पैदल गए, बट तब किसी ने सोचा यार कुछ तो हमें ऐसा बिल्ड करना चाहिए कि लोग बैठ के जा सके। बैलगाड़ी बनी, नहीं थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, साइकिल बन गई। थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, मोटरसाइकिल बन गई। थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, ट्रेन्स बन गई। और अच्छा बनाते हैं, बसेस बन गई। और भी अच्छा बनाते हैं, एरोप्लेन्स बन गए। व्हाट इज द नीड कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करना है। पहले लोग पैदल जाते थे, आज लोग फ्लाइट में जाते हैं। दिस इज अ चेंज हियर, द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द रिस्पॉन्स टू अ नीड, कि आप उस नीड को फुलफिल करने के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, दैट इज अ चेंज। हम आज से 8, 10, 12 साल पहले भी मोबाइल फोन थे हमारे पास, इतने मोटे मोटे मोबाइल फोन, आधा किलो के मोबाइल फोन, इतने बड़े बड़े मोबाइल फोन। आज भी हमारे पास मोबाइल फोन है, बट टुडेज मोबाइल फोन आर जस्ट अ फोल्डेबल, फोल्ड के अपने पॉकेट में डाला, कहीं भी ले गए। आप कहीं भी घूम लो पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ आपको मोबाइल फोन चाहिए, आपका सारे काम होते जाएंगे। दैट इज अ चेंज, बिकॉज इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। Now to achieve that change, I have a solution on the place. अगर जो फोन हम लोग आज के टाइम में यूज कर रहे हैं, अरे क्या हो गया मिस्टर गुड, हंसी आ गई हैं? अच्छा ठीक है, किसी ने अभी से चाय दे दी क्या कि सर लो आप चाय पी लो, पहले क्वेश्चन पूछ लेना इसके बाद। ओके फाइन। सो नाउ द क्वेश्चन कम सॉल्यूशनिंग पार्ट। सॉल्यूशन क्या है? एक स्पेसिफिक वे में उस प्रॉब्लम को, उस नीड को फुलफिल किया जाए। अब देखो, आपके कॉलेज की रिक्वायरमेंट है कि यहां पर एक गेस्ट लेक्चर होना चाहिए, दैट इज अ नीड। उसके लिए वो चेंज पे काम कर रहे हैं कि नहीं, हमें अब इंडस्ट्री के लोगों को बुलाना है, हमें किसी IITs को या इसको नहीं बुलाना, हमें इंडस्ट्री से लोगों को बुलाना है। गुड। एंड इन अ स्पेसिफिक वे, your lecturers, your dean, your HOD start looking on the social platform, maybe like LinkedIn. अच्छा देखें ये पर्सन किस पोजीशन में है, किस कंपनी में है। They send the request to them, get their timings, discuss कि सर मैं यहां से बात कर रहा हूं, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हमें गेस्ट लेक्चर चाहिए आपके यहां से। So that is a solutioning they are doing in a specific way. ऐसा नहीं है कि जाके अखबार में छपवा दिया, अरे हमारे कॉलेज में गेस्ट लेक्चर होना चाहिए, कोई है क्या दे दो। नहीं, they follow the specific way to do that part. जैसे आपकी मम्मी ने स्पेसिफिकली आस्क्ड यू कि बॉस ये बताओ आपके जो फ्रेंड्स आ रहे हैं उनको खाने में क्या क्या चाहिए। ये नहीं पूछा कि अच्छा बताओ क्या चाहिए, उन्होंने डिवाइड किया, स्टार्टर्स में क्या चाहिए, टी ब्रेक में क्या चाहिए, लंच में क्या चाहिए, डेजर्ट्स में क्या चाहिए। दे ब्रेक द थिंग्स इन अ sections and then ask you. Then it comes to the stakeholder. अगर उस लंच पार्टी में कुछ भी गलत होता है, खाना अच्छा नहीं था, स्टार्टर अच्छे नहीं थे, तो किसकी बेइज्जती होगी? इट्स नॉट योर मॉम और डैड। सबसे पहले लोग आपकी इंसल्ट करेंगे, अरे तुमने घर पे बुलाया, खाना ढंग से खिलाते। बाय सीइंग दिस आई रिमेंबर द डायलॉग ऑफ 3 Idiots। भिंडी देखो 12 रुपए किलो हो गई है, राइट? तो वो क्या है कि भाई उसके दोस्तों ने बाद में उसको जाके परेशान किया, तेरी मम्मी कहती भिंडी 12 रुपए किलो हो गई, और वही उन्होंने उसके हाथ पे लिख दिया। सो वी हैव टू बी अंडरस्टैंड स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मीन्स जो भी उस पर्टिकुलर नीड से या उस सॉल्यूशन से रिलेटेड है,
those are the stakeholder. Like when I say okay ma'am we are done for today or sorry we are set for the today, मैम का सुबह मेरे पास यहाँ के टाइम 5 बजे मैसेज आया, आई वॉज गेट अप दैट टाइम क्योंकि थोड़ा टेंशन था कि सुबह जल्दी उठना है मुझे, ठीक है। मैम से हे अतुल ऑल सेट, आई सेड यस ऑल सेट नाउ बिकॉज आई नो दैट यू आर माई स्टेक होल्डर्स नाउ। अभी तक सिर्फ मैडम मेरे स्टेक होल्डर थे, मैं क्योंकि उनसे ही बात कर रहा था, लेकिन नाउ इन दिस कॉल आई हैव 15 हु आर लॉग्ड इन हियर एंड मोर देन 30 to 40 guys who are sitting in the classroom. आप 60-70 लोग आप मेरे स्टेक होल्डर हो बिकॉज द लेक्चर हैज बीन अरेंज, द सेशन हैज बीन अरेंज फॉर यू गाइज टू गेट अ बेनिफिट, बट एट द साइड वी आर वेटिंग फॉर द वैल्यू। वैल्यू क्या है? कोई आंसर करेगा क्या? अरे अभी तो गुस्सा हो गया यार बाल सेट करते करते, अभी वीडियो ऑन करना है अपना प्लीज। अभी आईना, प्रियंका, पीयूष, कनिष्क, निखिल, आयुष और जो बाकी 3 लोग हैं एक बार अपने वीडियोस ऑन करिए यार जरा। मैं देखना चाह रहा हूं कि आप कहां पर हैं, सो तो नहीं गए कहीं हेडफोन लगा के करके सो गए हो कहीं? अरे मम्मी कॉफी लाना, बोल हो रहे हम। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड वैल्यू? अरे आवाज नहीं आ रही मिस्टर गुड, आप बोल रहे हो लेकिन म्यूट पे हैं आप। हाँ अनम्यूट करो कोई बात नहीं, जाइए अनम्यूट करिए आप प्लीज। एक कप चाय उसके लिए भी रखना साथ में। बोलिए। हाँ वैल्यू तो अपने आप में कीवर्ड है ना, वैल्यू की मतलब वैल्यू तो उसकी वर्थ क्या है? अच्छा, आपके पास फोन है, स्मार्टफोन कौन सा है? मोटोरोला। क्या वो आपके लिए वैल्यूएबल है? क्यों? मेरा है ना। अच्छा मेरा है, और इसके अलावा? सॉरी क्या है? मेरा डेटा, मेरा फोटोज। ओके फोन में है। अच्छा, और अच्छा ठीक है, अगर उस मोटोरोला के फोन में से मैं कॉलिंग फंक्शन निकाल दूं, आप उससे कॉल नहीं कर सकते, क्या फिर भी वैल्यूएबल है आपके लिए वो? नहीं, हाँ या ना, मतलब अप टू एक्सटेंड नहीं होता, हाँ या ना? स्मार्टफोन इसलिए है कि उसमें कॉलिंग के अलावा बहुत कुछ होता है, सिर्फ कॉलिंग। ठीक है, मैंने कॉलिंग निकाल दिया उसमें से, अब बताओ। व्हाट्सएप कॉल काउंट होगी क्या? चलो व्हाट्सएप रख लो यार, ठीक है, लेकिन मेन कॉल मैंने निकाल दी। मेरे पेरेंट्स काफी ओल्ड हैं, उनको व्हाट्सएप यूज करना नहीं आता, अब बताओ। अब और या तुम्हारे पेरेंट्स काफी ओल्ड हैं, उनको व्हाट्सएप यूज करना नहीं आता, उनके पास है भी नहीं, अब बताओ उनसे बात कैसे करोगे अगर मैंने आपके फोन से कॉलिंग ऑप्शन निकाल दिया? क्या वो फोन अभी वैल्यूएबल है आपके लिए? क्योंकि अब वो आपके लिए सिर्फ डब्बा बन चुका है, राइट? तो मतलब कि वैल्यू का पर्पस क्या है यहां पर, कि कुछ ऐसा जो इंपॉर्टेंट हो, यूजफुल हो, और जो आप एक कंटेक्स्ट में यूज करना चाहते हैं। कि सर अगर मुझे फोटो रखना फिर मैं पेन ड्राइव ले लेता हूं या आईपैड ले लेता हूं, मैं फोन क्या करूंगा लेके? क्योंकि यहां पर क्या है कि आपको उसकी वैल्यू नहीं मिल रही है। आप ये फोन कब बेचोगे? जब या तो टूट फूट जाएगा, हैंग होना शुरू हो जाएगा, बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, कॉलिंग में टाइम लगा करेगा, मिलता नहीं होगा नंबर, सिम में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप बोलोगे नहीं यार वैल्यू खत्म हो गई मेरे लिए, राइट? लेकिन वो एक कंटेक्स्ट में, यहां पर वर्ड देखिए आप, कंटेक्स्ट वर्ड है, कंटेक्स्ट। क्योंकि जब तक ये फंक्शनैलिटी चल रही है, इट इज अ वर्थवाइल फॉर यू, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। कल अगर आपके साथ आपकी फ्रेंड बैठी है, उसने आपके बर्थडे पे आपको आईफोन 13 गिफ्ट कर दिया, इमीडिएटली वो मोटोरोला का फोन आपके लिए वैल्यूलेस हो जाएगा, इमीडिएटली, राइट? क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू खत्म हो गई है और उसकी वैल्यू को किसी और ने टेक ओवर कर लिया, राइट? अब मैं सिर्फ यहां पर एक टर्म जो यूज करना चाह रहा हूं वो है कंटेक्स्ट। अगर आपकी फ्रेंड ने आपको फोन गिफ्ट करने के बजाय आपको एक ईयरफोन गिफ्ट कर दिए, ठीक है,
और उसमें से भी एक नहीं चलता। ठीक है, आप बोलोगे यार क्या गिफ्ट किया है, मैं तुझे पता है मेरे को क्लास लेनी होती है, मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं, मुझे अच्छे हेडफोन्स चाहिए, तो वो उस कंटेक्स्ट में काम नहीं कर रही। भाई जिस चीज की आपको नीड है, अगर मैं आपको उसी कंटेक्स्ट में, मान लीजिए आपका कल एग्जाम है, मैं कह रहा हूं अरे आओ चलो यार रात को पार्टी करते हैं, आज की दारू मेरी तरफ से, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो कंटेक्स्ट सेट नहीं है आपके लिए अभी। बट जैसे एग्जाम खत्म हो, क्योंकि वो लास्ट एग्जाम है, जैसे एग्जाम खत्म हुआ भाई आज पार्टी तेरा भाई देगा आज, अरे बताओ कहां चलना है, फिर आप बताओगे यार इसमें चलते हैं, अच्छी ज्यादा मिलती है, राइट। वो एक कंटेक्स्ट सेटिंग हो जाती है मेरे लिए। इट इज सर्कमस्टांसेस दैट इन्फ्लुएंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोवाइडिंग चेंज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चेंज, कि भाई जो आप चेंज लेके आना चाह रहे हो वो किस कंटेक्स्ट में है। आपके कॉलेज में ये सेशन अरेंज किया गया क्योंकि आपका कंटेक्स्ट है वो। इसकी बजाय अगर कोई मैं डांस या कोई डांस वगैरह अरेंज होता, आपको बोलते नहीं यार ये तो हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमें क्या करना डांस वांस का भी, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो एजुकेशन हमें मिल सके, कुछ हेल्प हमें मिल सके यहां पर। तो वो कंटेक्स्ट सेट होना बहुत जरूरी है यहां पर। ठीक है, ओके, द लास्ट स्लाइड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पे जितने भी लोग बैठे ना, इंक्लूडिंग आई रिक्वेस्ट टू टीचर्स एज वेल, डॉक्टर रामा है, मैडम सुषमा है, सोनिया मैम है, आप सबसे रिक्वेस्ट है आज जब आप घर जाएं सोने से पहले ये वाली एक्सरसाइज जरूर करना। ये एक्सरसाइज क्या है बेसिकली, मुझे ये पता करना है कि मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं और वो किस कैटेगरी में गिरते हैं, राइट। इट इज ऑलवेज अ गुड सेइंग कि जब आपके पास पैसा होता है ना तो हर कोई आपका दोस्त होता है। आज भाई का बर्थडे है तो वो भी आके हेलो बर्थडे विश करेगा जिसने आज तक कभी नहीं किया होगा, क्योंकि पता है भाई का बर्थडे है तो भाई आज पैसे लाया होगा और आज पार्टी होगी तो अपन को खाने पीने को मिलेगा फ्री में। तो वो जैसे अभी कुछ जो लोग पीछे बैठे हैं तो दूसरे रूम में बैठे हैं, वो खुश हैं कि चलो मिस्टर गुड बैठा है यहाँ पे, इसको पैसे दे देंगे या इसको हम चाय पिला देंगे, अपना आज का काम हो गया, अपना डन हो गया आज का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहां पर हमारे वर्ड्स यूज होते हैं स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स कौन है, ऑल द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर चेंज, जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, द सेशन विच वी आर गोइंग ऑन, ऑल दोज आर द, यू गाइज आर द स्टेक होल्डर्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग, मेरी फैमिली में मेरी वाइफ और मेरा बेटा भी इस सेशन के लिए मेरे स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि वो दूसरे रूम में है और मैं इस रूम में बैठा काम कर रहा हूं। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हमारे यहां पे 9 तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं। कैट, वो लोग जो आपको तब फेवर करते हैं when they're finding some interest। जैसे अगर मैं बात करूं, वीकेंड पे आपको घर जाना है, मान लीजिए आप दिल्ली में और आप जयपुर साइड में कहीं रहते हैं, आप वीकेंड टू वीकेंड घर जाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि आपका एक ऐसा, आपके क्लास में एक ऐसा भी है जो हमेशा लिफ्ट मांग के जाता है, उसको पता है फ्राइडे आ गया, ये इसने मिस्टर गुड ने घर जाना है, इसके पास तो ऑडी है, इसकी गाड़ी में जाऊंगा आज मैं। वो ट्यूसडे वेडनेसडे से आपके पीछे पड़ जाएगा, अरे यार तू कितना अच्छा है, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, अच्छा घर जाएगा क्या, इस बार ले चलेगा मुझे क्या अपनी गाड़ी में। सो ये वो लोग होते हैं, ये सिर्फ आपको तभी फेवर करेंगे व्हेन दे आर गेटिंग सम इंटरेस्ट। आप बोलोगे ना नहीं यार मैं तो बस में जाऊंगा, कैसा आदमी यार, तो हट, तो मेरा दोस्त ही नहीं है। सो नीड टू बी आइडेंटिफाई, ऐसे कौन से दोस्त हैं जो इस कैटेगरी में गिरते हैं, और ये बताना मत किसी को, नहीं लड़ाई हो जाएगी सच में, किसी को बताना नहीं, लेकिन ये एक्सरसाइज आपको अपने एंड पे करना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट, एलिफेंट, पावरफुल येट स्लो। बस मेरे पास ऑडी है, किसी ने मुझे बोला यार तू मुझे लिफ्ट दे देगा क्या, मंडे को बोला, उसने सैटरडे को जाना था, मंडे को बोला, मैं कहा ठीक है बताता हूं, करते करते मैंने फ्राइडे रात कर दी, फिर उसको बताया हाँ मैं दे दूंगा भाई, तेरे को कल लिफ्ट दे दूंगा। पावरफुल है लेकिन काम करने में स्लो है। मैंने से पावरफुल मीन्स दे हैव अ नॉलेज इन द इंडस्ट्री वर्ड्स,
they have a technical knowledge, they have a functional knowledge, they have a domain knowledge, but they are very slow to do that work. देखना ऐसे लोग भी होंगे आपके इर्द गिर्द, आपके दोस्तों में ऐसे भी होंगे. नाउ लॉयन, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियस. इसने एक बात बोली, आपने मान ली. लेट्स टेक एग्जांपल. when I was in my MCA, तो मैं भी ऐसे फर्स्ट बेंच पे बैठता था, मुझे अच्छा लगता है फर्स्ट बेंच पे बैठना. और जब पढ़ने का मन नहीं होता था ना, तो आती मैडम कहते हैं, मैडम आज मत पढ़ाओ ना प्लीज. ठीक है, सी द टोन वी आर सेइंग. ओके, एंड इफ आई से chances that madam will be agree on my words is 99% on a first go. अगर कोई और बोलेगा ना तो शायद मैडम एग्री नहीं होगी. ये वो लोग होते हैं who has a capability to change your mind immediately. There's a term called the brainwash. होता ना ब्रेन वॉश, भाई ब्रेन वॉश कर दे. जैसे in the young generation now, if I say, okay, how many of you want to go and study in abroad, US, UK, Canada और all the things, मैंने आपके माइंड में 4-5 अच्छे केसेस बना के डाल दिए, चाहे झूठे ही थे. नाउ यू आर बी गॉन कंप्लीटली. नहीं, अतुल ने बोला तो होगा ही होगा, हम जाएंगे ही जाएंगे पढ़ने बाहर. सो दीज आर दोज गाइस. ये अच्छे दोस्त होते हैं आपके, सच्चे दोस्त होते हैं लोग. ये झूठे नहीं होते, ये सच्चे दोस्त होते हैं. क्योंकि ये जो बोलेंगे ये एक्यूरेट बोलेंगे, ऑन द ग्राउंड रियलिटी बोलेंगे कि बॉस ये होगा कि नहीं होगा. और वो आपके डिसीजन को पूरा इन्फ्लुएंस कर देते हैं. दे विल चेंज देयर माइंड कंप्लीटली. नाउ डॉग, कमिटेड टू द प्रोजेक्ट सक्सेस. गाइस पार्टी करनी है इस वीकेंड. 2 लोग खड़े हो जाएंगे, भाई पार्टी तो होके रहेगी, चाहे 2 लोग हैं चाहे 3 लोग हैं, पार्टी तो पक्का होगी. दे आर ऑलवेज रेडी फॉर द सक्सेस. चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इनको अपने पल्ले से पैसे डालने पड़े, लेकिन ये पार्टी करके मानेंगे. चाहे 2 लोग आए चाहे 3 लोग आए. ये इट इज आई एम इन दिस कैटेगरी सम टाइम. चाहे मेरे नॉलेज शेयरिंग सेशन में चाहे 1 बच्चा आए चाहे 2 बच्चे आए, अगर कमिटमेंट दी है तो सेशन तो होगा ही होगा. आई डोंट केयर कि कोई क्वेश्चन पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे, क्योंकि मुझे नॉलेज देना है, मुझे नॉलेज बांटना है, तो मैं बांट के रहूंगा. देन पेंगुइन, स्लो एंड स्टडी. आई पुट दोज गाइज इन देयर कैटेगरी जिनका विजन और मिशन बहुत क्लियर होता है शुरू से. आई एम नॉट श्योर इट्स दिस फंडामेंटल दिस डेटा इज करेक्ट और नॉट. जो लोग आईपीएस या इसके लिए आईपीएस एमबीबीएस के लिए या आईएएस के लिए तैयार बनना चाहते हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो कॉलेज में आके नहीं सोचते. वो 9th 10th में सोचना शुरू कर देते कि मुझे क्या करना है आगे, एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पार्ट. यू विल बी सरप्राइज्ड कि कुछ लोग बीए, आई एम श्योर यू आर डूइंग बीकॉम और बीबी और समथिंग. आई एम अ बीकॉम पास आउट. ठीक है, कुछ लोग बीए लेते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये तो सिर्फ मुझे एक टाइम पास करना है, मुझे तो आईपीएस की तैयारी करनी है. सो दे आर क्लियर ऑन देयर पार्ट. स्लो है, धीरे धीरे करते रहेंगे, लेकिन लगातार करते रहेंगे. ये डिग्री होने के टाइम नहीं सोचेंगे अच्छा भाई मुझे अब क्या करना है. नहीं, ये 3-4 साल 5 साल पहले सोचना शुरू कर देंगे कि मुझे अपना गोल क्या अचीव करना है. रैबिट, फास्ट एंड फिकल. बोला और काम हो गया. सोनिया मैम ने कहा, जैसे अगर मैं बोलो आपके एचओडीज या जो भी आपके डीन या एचओडी हैं, उन्होंने बोला सोनिया मैम को मैम एक लेक्चर अरेंज करना है, मैडम हो जाएगा. मे बी इन द बैकग्राउंड शी नो कि आई विल चेक विद अतुल और समवन एल्स, हो जाएगा, मेरे नॉन में है. दैट इज फास्ट एंड फिकल. मैडम ने 10 बजे बोला, 2 बजे रिपोर्ट आ गई, मैडम ये पर्सन है, ये इसका प्रोफाइल है, ये डेट्स एंड टाइमिंग्स, आप प्रोफाइल विजिट कर लो, इफ यू फाइन वी कैन गो फॉर द सेशन. फास्ट एंड फिकल. ईगल, कैन व्यू अहेड. एंड इस कैटेगरी में आई कीप ओनली फ्यू और ओनली 2 persons, and those 2 persons are my parents only. In our Hindu tradition, specifically in our India
और I'll say in India specifically, कहता ना कि जब जिस घर में बेटी पैदा होती है तो उसके पापा उस दिन से उसकी शादी की चिंता शुरू कर देते हैं कि मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, मुझे इसको इतना पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। अभी वो 1 घंटे की भी नहीं, अभी जस्ट बर्थ लेके बाहर आई है वो, बट द फादर स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द टिल मैरिज कि मुझे अपनी बेटी के लिए ये सब करना है। ये वो लोग होते हैं। हो सकता है आपके कुछ दोस्त हों जो आपको गाइड करते हैं कि भाई देख अभी से पढ़ना शुरू कर दे, फायदा रहेगा, लेकिन आप सुनते नहीं। लेकिन उनको पता है कि कैसे अचीव करना है। आपके 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 एचओडीज, आपके लेक्चरर्स, आपके डायरेक्टर्स, कॉलेज के डायरेक्टर्स, कॉलेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, ये उस कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनका विजन है कि हाउ वी कैन गिव अ गुड एजुकेशन टू अवर स्टूडेंट्स। एंड लास्ट, हिप्पो, माई वे और हाईवे। जैसे मैंने मैडम को बोला, सॉरी टू से, बट मैंने मैडम को बोला, मैडम सेशन अगर होगा तो 11 से 12 होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा ऑफिस है, मैं इससे जल्दी नहीं उठ सकता। अगर आप बोलो तो 10 बजे लोगे, नहीं मैडम नहीं होगा, फिर तो नहीं होगा, क्योंकि 10 का मतलब मुझे 4:30 बजे उठना पड़ेगा। यहाँ पे 4:30 तो सेशन शुरू होगा, तो मैं 4 बजे नहीं उठ सकता, सॉरी। एंड दे एग्री कि ठीक है चलो 11 बजे इज फाइन। सो यू विल फाइंड आउट समवन इन योर सर्कल कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अपनी ही चलाते हैं और हमें उनकी माननी पड़ती है बाद में। भाई या तो करना तो मैं इतना करने तो नहीं कर, ठीक है। तो ये वो वाली बात है। और लास्ट में आउल, ये वो लोग हैं जो तब उठेंगे जब फाइनल एग्जाम्स आ जाएंगे, और हमें तो ट्रेनिंग भी करनी थी भाई, मैं चल पता करता हूं कहां पे होगी, मैं अपने पापा से पूछूंगा, भैया से पूछूंगा, और फिर टेंशन। आपको पता है आपके करिकुलम में इट इज ऑलरेडी मेंशन योर करिकुलम कि एट द एंड ऑफ द लाइक इन माय एमसीए आई नो फ्रॉम द डे 1 कि 3rd ईयर के बाद मुझे एक ट्रेनिंग करना है। बट भाई तो भाई होते हैं अपने जैसे, 2 साल निकाल दिए, नहीं हुआ, 3 साल में टेंशन हो गई क्योंकि 6 महीने का सेमेस्टर, 6 महीने की ट्रेनिंग है। नाउ आई वेक अप, अरे भाई तुम्हें पता है क्या कहां पे ट्रेनिंग करनी है। तो ये वो लोग हैं, ये लोग तब जागेंगे जब आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा होगा। अरे यार तुम तो मुझे बुलाया ही नहीं यार, चल बता कोई काम हो तो बता दियो। सी द स्टेटमेंट, पार्टी में आ गए फिर बोलेगा कोई काम हो तो बता दियो। भाई पार्टी शुरू हो गई, अब क्या काम होगा। और अगर तुम उसको बता दोगे तो करेगा नहीं। यार इनको दो लोग घर छोड़ाओगे कि नहीं, छोड़ के नहीं आएंगे, बट दे वॉन्ट टू टेक अ क्रेडिट कि भाई मैंने पूछा तूने काम नहीं बताया, मैंने तो पूछा था, मैं तो देख आया तेरे घर पार्टी में, मैंने पूछा कोई काम हो तो तूने बताया ही नहीं। तो नाउ द एक्सरसाइज कम फॉर यू गाइस, ठीक है। ये आप चाहे नोट कर लो, अगर चाहिए तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने यहां से, लेकिन डू दिस एक्सरसाइज, ट्राई टू आइडेंटिफाई। ये इसलिए जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बाय पुटिंग द पीपल इन दिस कैटेगरी यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे किस टाइम पे किससे बात करनी है अपने करियर को लेके। मुझे इन लोगों से बात करनी है, मुझे इन लोगों से बात करनी है, मुझे इनसे बात करनी है, मुझे इनसे बात करनी है, मुझे किससे कब बात करनी है, ये आपको आइडिया मिलेगा। क्लियर एवरीवन? चलो एक बार हाथ खड़ा कर दो, सबको क्लियर हो गया ना? अरे हाँ, देख देख के नहीं ऐसे हाथ खड़ा करना। चलो बोलो जय माता की। गुड, लेट्स गो। विल स्किप दिस क्योंकि काफी कुछ हो गया इसमें। हाँ, नाउ इट इज योर एरिया। एनी क्वेश्चन, एनी फीडबैक यू गाइज हैव फॉर मी? क्योंकि आई एम अ बिजनेस एनालिस्ट, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। Not for the guest lecture, but definitely it's required for me. So now I request everyone if you can go unmute and you can speak. 2 कप चाय पिलानी पड़ेगी मिस्टर गुड उसको, 2 बार उठाया तुमने अनम्यूट करने के लिए। बताइए, anyone has any question, any feedback? अभी सेशन खत्म नहीं हुआ, अभी तो सस्पेंस बाकी है। मैं सोचूं कि चलो लॉग ऑफ करें और चले यहाँ से। Any questions, anyone? It's a wonderful session. Okay, thank you, ma'am. I have something for you. Okay, I have something for you. Definitely,
अब देखो, when I came for this session, I have some personal कहता ना लालच भी होगा मेरा कुछ भी, ठीक है. Rama ma'am, can you go on the mute please? It's giving me echo actually. Thank you. Okay. So now if you guys want to connect with me, here's the details. You can take it. This is my logo for my channel. I'm running a YouTube channel. You can get it the link from here. You can connect me on the LinkedIn by this scanning code. सब एडवांस है तो मैं भी थोड़ा सा एडवांस हो गया हूँ अभी. और this is the contact details I have. ठीक है. You can scan it. Otherwise, let me put into the chat window as well, so that in case anybody want to connect with me, they can connect very easily. अच्छा, वो गलत कॉपी किया मैंने. So here are the details available, guys. Okay, and let me do the stop presenting as well. Okay, my YouTube channel, my LinkedIn details are there, my email is there, my WhatsApp number is there. Okay, in case you want, you can connect with me. In case ऐसा नहीं कि सर बस ऐसे ही आपको पिंग कर दिया और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून शुरू हो गई. In case you literally need some kind of a help, some kind of a guidance, you can reach out to me without any issue. Okay, let me do one more thing. I'll take the picture of the screen as well, and post this session maybe in next 1 hour or 2 hour maybe, or by evening I'll be putting this on the LinkedIn as well, and the same session will be available on my YouTube channel. वैसे तो कुछ सुनेगा नहीं दोबारा जाके क्योंकि बहुत हो गया आज के लिए, but still if you want to go you can go and watch this session again. ठीक है. Over to you, Sonia ma'am. I'm done from my side. I took 19 minutes more actually. Yeah, it's okay, Atul. It was really an informative session. Yes, Hema? Knowing is not enough, we must try. Failing is not enough, we must do. What a refreshing, informative and effective session for all of us to begin our day with. Sir's knowledge is sure to reap us benefits with clear reasoning and application in the future. Sir, we are sincerely grateful to you for gracing today's event with your invaluable presence. I thank you on behalf of entire BCIIT team. Let's have a round of applause for his dedication and efforts to help us and guide us through our professional lives. Thank you so much, Atul sir. Thank you for sparing your precious time for us. Thank you, ma'am. So guys, please do the feedback very honestly. If you want to put any negative point, I have no worries. You can go ahead and put the negative things, because this is required for the improvements. And remember, I'm in the field of the consulting. जब तक feedback नहीं होंगे तब तक progress नहीं होगी. So if you think कि सर बड़ा boring है, अगली बार हम sponsor करते हैं कि हाँ जाओ हमसे मिलने, मैं आ जाऊँगा. ठीक है? So we'll definitely try to be have a one in-person session as well when I will be in India for the trip. Okay. And once again, thank you so much, Sonia ma'am, and really sorry to keep you hanging for approximately 1 month to give the dates and the timings. It's okay. Okay. Thank you, so Dr. Rama, for arranging all these things. Dr. Sushma ma'am, thank you so much for arranging all the things. And all the best, guys. Have a nice weekend. Have a nice week ahead. Take care. Bye. Thank you so much. Students, please fill out the feedback form. Okay, everyone, it's being shared on your groups. Thank you so much. Thank you all. Bye. Bye-bye.